Hello dear students, welcome in maths class. Here we are going to start complex number of 11th standard, the first topic of first chapter of maths 2 paper, that is complex number. So here square root of negative number is a imaginary number which is not real number. So square root of minus 1 is what? I, that is from iota. So square root of minus 1 is not real number, it is an imaginary number. So square root of minus 1 will be I. Here square root of minus 4 then, square root of minus 4 then will be equal to square root of minus 1 into square root of 4, which will be, here square root of 4 is 2 and this is I, so which is 2I. Square root of minus 4 will be 2I. Square root of minus 5, root 5. Okay, so it is root of minus 1 into root of 5, which is root 5I. Yeah, I root 5, which is not a real number. Now, what are the complex numbers? See, thus we can solve this equation x square plus 4 is equal to 0. X square plus 4 equals to 0 will have solution x square equals to minus 4 and x will be equal to plus or minus root of minus 4 and which is equal to plus or minus 2r. So in the set of real number the equation, इस इक्वेशन को रियल नंबर में सॉल्यूशन नहीं है, but this equation can be solved and the solution of this equation होगा x is equal to plus or minus 2i, plus or minus 2i. Now we are going to define complex number. तो complex number क्या है? See, look at this example. यहाँ पे 2 plus 5i, ये हम एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पर 2 और 5 क्या है? रियल नंबर्स. 2 and 5 are the real numbers और I is equals to root of minus 1. Then this number is called as a complex number. Number of this form 2 plus 5i, okay, it is complex number. So in general हम define करेंगे complex number. Say a and b are real numbers. Then number of this form a plus ib या a plus bi, this number is called as a complex number and we denote it by z. We denote it by z. So how we define complex number? Number of the form a plus ib or a plus bi. See here, number of this form a plus ib या a plus bi, where a and b are belongs to r, मतलब real numbers, or r is equals to what? Root of minus 1. The number of this form is called as a complex number and we denote this complex number by z. Z is equal to a plus ib. Yeah, this is a complex number. For example, here the complex number z is equal to 2 plus 4r. यहाँ पर 2 और 4 क्या है? रियल नंबर्स. I is equals to root of minus 1. Now in this complex number, this a, okay, this a is called as the real part of a complex number. इसको हम बोलते हैं real part of complex number. The real part of complex number is a और ये b को, खाली b को, नॉट आई बी, b को बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज b. इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी b. यहाँ पर इन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, सी हियर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 plus 4i. तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में
रियल पार्ट क्या होगा? What will be the real part of this complex number? Real part of this complex number will be 2, or imaginary part of this complex number will be what? 4, not 4i. This will be the real part 2 and imaginary part is 4, not 4i. Now the set of complex number, okay, set of complex number we denote by capital C. So capital C is a set of complex numbers. Z is equal to a plus ib. Z is equals to a plus ib, such that a and b r belongs to R. Okay, a and b r belongs to R, and I is equals to what? Root of minus 1. The set of complex number. Set of complex number we denote by capital C. Capital C is a set of complex number. Z is equal to a plus ib, where a and b r belongs to R, and I is equals to what? Root of minus 1. Now, see, is it a complex number? Only 2. Suppose I write, is it a complex number? Yes, it is a complex number, because ये 2 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 प्लस 0i. 0 into i is 0. 0i. Clearly it is of the form a plus ib. यहाँ पर a और b मतलब 2 और 0 क्या है? रियल नंबर्स. Therefore it is a complex number. But इसको हम बोलेंगे it is purely real number. It is what? Purely real number. It is purely real number. Purely real number. That means purely real number हम कैसे define करेंगे? A number in which imaginary part is 0. If imaginary part of complex number is 0, then it becomes purely real number. अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 3i. 3i को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में? यस, वी कैन राइट इट एज 0 प्लस 3i. सो क्लियरली 0 और 3 क्या है? रियल नंबर्स. i इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 1. मतलब इसको हम ये फॉर्म में हमने एक्सप्रेस किया है. सो क्लियरली इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट इसको बोलते हैं हम प्योरली इमेजिनरी नंबर. इसको क्या बोलते हैं? प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलते हैं. प्योरली इमेजिनरी नंबर. सो हाउ वी डिफाइन प्योरली इमेजिनरी नंबर? इफ रियल पार्ट, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है? 0 है. यस, रियल पार्ट अगर 0 है तो उसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर. अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो उसको बोलते हैं प्योरली रियल नंबर. देन every real number is a complex number. Therefore set of real numbers जो है, set of real numbers, listen, set of real numbers is a subset of complex number. क्योंकि सभी real numbers क्या है? complex numbers. Therefore set of real number is a subset of complex numbers. अभी now we are going to see we solve this exercise 1.1 question number 1 हम solve करते हैं. We are going to start this question number 1. Here sub question 1, square root of minus 16 को हम लिखेंगे square root of 16 is 4 और root of minus 1 is I. So this is equals to 4i. This is equals to what? 4i. अभी 3 into square root of 25 is 5 और square root of minus 1 is I. ये होगा 3 into 5i plus square root of 36 is 6 and square root of minus 1 is I minus 625 है तो इसका स्क्वायर रूट होगा 25 एंड रूट ऑफ माइनस 1 इज r. So we collect
here this is what 4i, यहाँ पे 15i है, 15i, here plus 6i, 6i minus 25i. तो here टोटल कितना होगा, ये 25i और ये 25i, so that comes out to be 25i minus 25i, it is 0. So what is the answer of this? 0. Let us solve this next question, second sub question. It is 4 root of minus 4 plus 5 root of minus 9 minus 3 root of minus 16. So next question is this, how we solve this? Listen, 4, यहाँ पर रूट ऑफ माइनस 4 इज 2i, ये होगा 2i प्लस 5, रूट ऑफ माइनस 9 विल बी 3i माइनस 3 इंटू रूट ऑफ माइनस 16 इज 4i, कितना होगा ये 8i प्लस 15i माइनस 12i. This is here 15i और ये 12i, so it is 3i and this 8, so it comes out to be 11i. So here is this thing. Now we are going to define conjugate of a complex number. See here z is equal to, यहाँ पर z is equal to 2 plus 3i, 2 plus 7i. ये एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस 7i. यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया है. सो दिस नंबर विल बी अ कॉन्जुगेट ऑफ और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर. So how we define complex conjugate of a number? Number obtained by changing the sign of imaginary part, that is called as a conjugate of a complex number, and we denote it by z bar. We denote it by what? Z bar. So how we define conjugate of a complex number? See here, conjugate of complex number. How we define conjugate of complex number? So conjugate of complex number we define as number obtained by changing the sign of imaginary part. Suppose z is equal to a plus ib is our given complex number, then its conjugate we denote by z bar, and that will be obtained by changing the sign of imaginary part, that is minus i. अगेन हम इसका वापस से अगर कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या होगा? दैट विल बी अगेन वी चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट एंड इट बिकम्स a प्लस आई बी. ओरिजिनल नंबर होगा, तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉन्जुगेट नंबर इज व्हाट? सेम नंबर. सो राइट द कॉन्जुगेट ऑफ, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 2. राइट द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स. यहाँ पर 3 प्लस आई, तो उसका कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस आई. जेड बार विल बी इक्वल टू 3 माइनस आई. फिर इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? रूट ऑफ, हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, जेड बार विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 5 प्लस आई होगा. हियर व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ दिस? Now conjugate of root of 5 minus r. So here this is our complex number z,
तो देयरफॉर इसका कॉन्जुगेट होगा जेड बार इज इक्वल टू रूट 5 प्लस आई। तो व्हाट वी डिड हियर, हमने क्या किया यहाँ पर, साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट चेंज किया है। अभी नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हमें भी यहाँ पर क्या करना होगा, साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट चेंज करना होगा, so that you will get the conjugate. So z bar will be equal to cos theta minus I sin theta. Yes, here this number, third one, third sub question, यहाँ पर रूट ऑफ -5 है, माइनस रूट ऑफ 7i है। So conjugate of this number will be what, z bar will be equals to root of minus root of 5। हमने इमेज रियल पार्ट को डिस्टर्ब नहीं किया, खाली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया। वी आर गेटिंग दिस z bar, conjugate of a number. Then we will see what is the equality of two complex numbers. दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? से z1 is equal to, listen here, z1 is equal to a plus ib है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, two complex numbers. So when does the two complex numbers are equal? Suppose z1 is a plus ib है और z2 है c plus id, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होंगे? when does the z1 is equal to z2, z1 और z2 इक्वल कब होंगे? if a plus ib is equal to c plus id, कब होंगे? is equals to what, c plus id. so a रियल पार्ट क्या है इसमें, a, और इसमें रियल पार्ट है c. so a is equal to c, इथन ओनली a is equal to c और b is equal to d, मतलब रियल पार्ट इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है। देन एंड देन ओनली दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल। तो रिमेंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो सकते हैं, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं हो सकते। सो ऑर्डर रिलेशन इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट डिफाइंड, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। सो लेट अस डू question number 3. Find a and b if this. So let us do question number 3. Here, question number 3. Find a and b. A और b find करना है। Let us do this second question. यहाँ पर है a minus b, okay, plus a plus b into I. What is the right hand side? a plus 5i है, ये है right hand side. Two complex numbers are equal, therefore real part are equal and imaginary parts are equal. Therefore a minus b is equal to a, और इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा, a प्लस b, और राइट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट है 5। देयरफॉर यहाँ पर a कैंसिल होगा, ये a और ये a कैंसिल होगा, सो क्लियरली b विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0। अगर b 0 है तो देयरफॉर a विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर b 0 है तो a विल बी इक्वल टू व्हाट, 5। so a is 5 और b is what, 0। यहाँ पर हमें a और b फाइंड करना है। नेक्स्ट लुक एट दिस थर्ड सब क्वेश्चन। यहाँ पर थर्ड सब क्वेश्चन करते हैं, a प्लस b इंटू 2 प्लस r, a प्लस b इंटू 2 प्लस r इज इक्वल टू b प्लस 1 प्लस 10 plus 2a I.
वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड ए और बी। सबसे पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो लेट अस डू दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन करते समय हम ऑर्डिनरी ए से पहले टर्म से पूरे दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2a, फिर ai, या तो हम ये a प्लस बी से इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट अस डू दैट। हियर मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी टू 2, मतलब 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी मिलेगा। फिर a प्लस बी से i से मल्टीप्लाई करो, तो a प्लस बी इंटू r। और इधर राइट हैंड साइड b प्लस 1 है, प्लस 10 प्लस 2a इंटू r। नाउ बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हियर रियल पार्ट इज दिस, इज द रियल पार्ट। यहाँ पर रियल पार्ट ये है, तो वी इक्वेट इट 2a प्लस 2b इज इक्वल टू b प्लस 1, ये रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है, a प्लस b इज इक्वल टू 2a प्लस 10, ये इमेजिनरी पार्ट है। अभी हियर वी विल गेट 2a प्लस बी, ये b इधर आएगा लेफ्ट में, इज इक्वल टू 1, ये होगा इक्वेशन 1। और यहाँ पर 2a माइनस बी, ओके, 2a माइनस बी, सॉरी 2a माइनस a, दैट इज e, ओके, इज a। So what is the another equation, ये हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी आएगा बेटा, a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 10, दैट इज इक्वेशन 2। हम दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अगर इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे आएगा ba, b is getting cancelled, is equal to minus 9. Okay, we are adding these two equations. ये होगा 3a और b कैंसिल होगा, एलिमिनेट होगा, 1 minus 10, that is minus 9. Therefore you are getting a is equals to what, minus 3. अगर हम a equals to minus 3 इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, what you will get, you will get minus 3 minus b is equal to minus 10, मतलब minus b is equal to what, minus 7, और b is equal to what, 7. So we are getting a is equal to minus 3 और b is equal to क्या मिलेगा बेटा, 7. So in this way we find a and b. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। We'll do now this question। यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन 1 अपॉन a प्लस आई बी है, a इक्वल्स टू 3 माइनस 2i। हम दोनों का रेसिप्रोकल लेते हैं, तो क्या मिलेगा, a प्लस आई बी होगा इसका रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन b माइनस 2i। फिर ये डिनोमिनेटर में है तो इसके कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। कॉन्जुगेट ऑफ दिस विल बी 3 प्लस 2i से हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हाँ, हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। सो व्हाट इज और a प्लस आई बी, देन a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू, सी दिस क्वेश्चन में रहा तो डिवीजन कैसे करते हैं हम, कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है। 3 इंटू 3, दिस इज 9 माइनस 4 मीन्स आई स्क्वायर, a प्लस आई बी और a माइनस आई बी है ना, 3 प्लस 2i,
दिस इज 3 plus 2i अपॉन 9 और माइनस आई स्क्वेयर क्या होगा बेटा, माइनस आई स्क्वेयर इज प्लस 1 ना, इट इज प्लस 4 विच इज a प्लस आई बी. अभी this is 13, so a plus ib will be equal to what, 3 plus 2i upon 13. Then this is equal to what, here a plus ib is equal to what, a plus ib is equals to 3 upon 13 plus 2 upon 13 i. अभी इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है, so we equate the real part, a will be equals to 3 upon 13 or b is equal to 2 upon 13. Thus we got a and b. फिर नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं. देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, सो विल डू नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन. हियर सिक्स्थ क्वेश्चन इज a plus ib into 1 plus I is equal to 2 plus I. yes, मल्टीप्लाई इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस a से मल्टीप्लाई करो तो a प्लस ए आई, फिर b इंटू आई, so b i प्लस आई स्क्वेयर b, आई स्क्वेयर b is equal to 2 plus I. आई स्क्वेयर इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 1. a प्लस, यहाँ से हम दोनों टर्म में से i कॉमन लेते हैं, तो i इंटू a प्लस b, और ये आई स्क्वेयर इज माइनस 1, 2 प्लस i. देन इट इज a माइनस b, ये रियल पार्ट है, टोटल ए रियल पार्ट प्लस i इंटू ए प्लस बी, ये है इमेजिनरी पार्ट a प्लस बी, 2 प्लस i. अभी रियल पार्ट इज a माइनस बी, इधर रियल पार्ट है 2, इमेजिनरी पार्ट है a प्लस बी, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है 1. अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो b is getting eliminate, so 2a will be equals to 3. ऐड करेंगे हम, और therefore a will be equals to what, 3/2. a यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, what will get, a plus b is equal to 1 है, और a 3/2 है, 3/2 plus b is equal to 1, तो b will be equals to 1 minus 3/2, मतलब -1/2, -1/2 आएगा b. तो thus we are getting answer over here. a कितना है, 3/2, और b कितना है, -1/2. यहाँ पर दोनों a and b we got. अभी we will do now, you know, multiplication of two complex numbers करते समय दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, z1 इंटू z2. अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो हाउ टू डू दिस मल्टीप्लिकेशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं. हियर z1 इंटू c, और z1 इज दिस a प्लस आई बी है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल टू
c प्लस आई डी है। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? जस्ट ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, z1 इंटू z2 a प्लस आई डी c प्लस आई डी। यस चिल्ड्रन, फर्स्ट टर्म से दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी प्लस ए आई डी, फिर बी सी आई, फिर आई स्क्वेयर बी डी। जहां पर आई स्क्वेयर है वहां पर हमें लिखना है -1, सो दिस z1 इंटू z2 विल बी, यहाँ पर ये रियल पार्ट होगा ए सी, ये आई स्क्वेयर -1 है तो ये माइनस बी डी बन जाएगा। हम इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, यहाँ से हम आई कॉमन लेते हैं, आई कॉमन लिया, so what you will get AB plus BC. Yes, in this way you have to multiply two complex numbers. Here question number 4 देखिए, see question number 4, express the complex number in A plus IB form. इस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, A plus IB फॉर्म में एक्सप्रेस करना है the given complex number, a plus ib फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। so let us express this complex number in a plus ib form. See this complex number we express in a plus ib form. See the first one, फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस 2i माइनस 2 प्लस i। सो जस्ट ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन करना है, यहाँ पर 1 से हम दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, सो आएगा -2 प्लस i, और फिर 2i से मल्टीप्लाई करना होगा, -4i माइनस 2i स्क्वायर। जहां पर भी i स्क्वायर आता है दैट इज -1, माइनस आई स्क्वायर होगा +1, यहाँ पर -2, ये i माइनस 4i इज -3i, और माइनस आई स्क्वायर इज +1, यहाँ पर आएगा +2, तो +2 और -2 0 होगा, 0 माइनस 3i, क्लियरली इट इज ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी। हमारा a क्या होगा 0 और b क्या होगा -3। नाउ लेट अस डू अनदर वन, ये 1 प्लस i, सेकेंड सब क्वेश्चन, 1 प्लस i इंटू 1 माइनस i रेस्ट टू पावर -1। अब रेस टू पावर -1 है तो डिनोमिनेटर में आएगा, दैट विल बी डिनोमिनेटर, इट इज 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i। जहां पे भी डिनोमिनेटर में, सी इट इज इन द क्वेश्चन फॉर्म, तो जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, और इज द कॉन्जुगेट ऑफ इट 1 प्लस i, कॉन्जुगेट होगा इस नंबर का कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस i। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें 1 प्लस i से मल्टीप्लाई करना होगा, देन इट इज, सी द डिनोमिनेटर विल बी व्हाट, 1 प्लस i 1 माइनस i 1 माइनस i स्क्वायर, मल्टीप्लाई दिस, ये 1 प्लस i होल स्क्वायर होगा, यस बच्चों 1 प्लस i होल स्क्वायर होगा, और डिनोमिनेटर में होगा 1 माइनस आई स्क्वायर, और माइनस आई स्क्वायर इज, कीप इन माइंड, +1। वी एक्सपेंड दिस 1 प्लस 2i प्लस i स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन न्यूमरेटर का।
जहाँ पर आई स्क्वेयर है दैट इज -1 और माइनस आई स्क्वेयर इज +1, ये होगा 1 + 2i, ये होगा -1 अपॉन दिस इज 1 + 1 2, माइनस आई स्क्वेयर इज +1 ना, so ये 1 और ये -1 is getting cancelled, 0, it is 0 + 2i upon 2 which gives 0 + r, ये 2 कैंसिल होगा, 0 + r, तो क्लियरली इट इज ऑफ द फॉर्म a + ib, इस फॉर्म में आ गया। अभी विल डू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी विल डू थर्ड क्वेश्चन करते हैं। We'll do now third question. Question number 3. I into 4 + 3i upon 1 - i. So first of all इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, i से मल्टीप्लाई करेंगे, 4i 3i स्क्वायर होगा ये अपॉन 1 - i. Then further we solve it, again I square is -1 होगा, so it is -3 होगा, ये इस -3 + 4i. अभी ये क्वेश्चन फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर जो है इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कॉन्जुगेट इज 1 + i, यहाँ पर भी 1 + i से हम मल्टीप्लाई करेंगे। What will be this? -3 -3i 4i 4i square 1 - i 1 + i is 1 - i square, 1 - i square will be 1 + 1. Then here minus I, see here I square is -1, ये -3 है, -3i है, यहाँ पर 4i है, और ये i स्क्वायर इज -1 तो -4 होगा अपॉन ये 1 - i स्क्वायर, -i स्क्वायर इज +1, तो यहाँ पर होगा ये 2. देन -3 - 4 इज -7, और ये प्लस i होगा, 4i - 3i दैट इज i अपॉन 2, so it gives us -7 upon 2 plus I upon 2, या 1/2 I. So clearly it is in a plus ib form में I. अभी we will do this fourth question करते हैं. What is this fourth question? Fourth question is here 2 plus I upon 3 minus I into 1 plus 2I. Okay, so solve this denominator को हम solve करेंगे, 2 plus I अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 plus 6i, फिर माइनस i, फिर -2i स्क्वायर, -2i स्क्वायर माइनस i,
यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6i विच इज 2 प्लस i अपॉन यहाँ पे 6i माइनस i दैट इज 5i, 3 प्लस multiply by this 3, so it is 3 plus 6i, then minus I, then minus 2i square, that is the multiplication. फिर वापस से हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2 प्लस i अपॉन 3, 6i माइनस i that will give us 5i और 5i और ये माइनस 2i स्क्वायर मतलब प्लस 2 होगा. Here it is 2 plus I upon 2 plus I upon ये 3 और 2 5 होगा, 5 plus 5i. फिर हमें इसे कॉमन लेना होगा. Here यहाँ पे डिनोट करेंगे हम z, 2 plus I, यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, 1 plus I it will be, हाँ अब 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या है, 1 माइनस आई. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, 1 माइनस आई. 5 एज इट इज रखना है. दिस इज 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 और माइनस 2i, फिर i माइनस आई स्क्वेयर अपॉन यह 5 इंटू 1 प्लस आई एंड 1 माइनस आई, इट इज 1 माइनस आई स्क्वेयर. देन और z विल बी इक्वल्स टू r, 2 माइनस 2i प्लस i इज माइनस i, माइनस i स्क्वेयर इज प्लस 1, माइनस i स्क्वेयर इज प्लस 1. फिर 5 into denominator is what, 1 minus I square, so minus I square is plus 1. Yes, so z is equal to what, here it is 3 minus I upon ये 10 होगा, so that you can simplify it, 3 upon 10 minus 1 upon 10 into I, that is our z. So thus it is expressed as a plus ib form. यहाँ पर a is 3 by 10 and b is minus 1 upon 10. So yes children, we did from this question, that is question number 4. Question number 4 से first 4 questions किए हैं. In the next video we will continue next questions. Thank you for watching this video.